دعا کر لیں شاہ صاحب تو پھر بسمillahirrahmanirrahیم۔ آج داتا حضور کے قدموں میں جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ خالصتاً جتنے بھی لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ اتحاد کے لیے جمع ہوئے اور ان کا مقصد جو ہے ان دونوں شخصیات قبلہ امیر المجاہدین اور قبلہ جلالی صاحب کو ایک سٹیج پہ بٹھانا ہے۔ اختلافات جو بھی ہیں اس وقت اہل سنت پہ وہ وقت ہے کہ ان دونوں قائدین کو اختلافات کو بلا کے ایک سٹیج پہ اکٹھا ہونا ہے اور اس سلسلہ میں ہم اتحاد کے لیے کوششیں کرتے بھی رہے ہیں اور کوششیں کریں گے بھی۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا انشاءاللہ لائے عمل ہوگا کہ علماء اور مشائخ اور جو بزرگان دین ہیں ان کو بٹھا کر ان دو عرض کی جائے دست بستہ ہو کے کہ ان دونوں قائدین کو ایک سٹیج پر بٹھایا جائے اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں انہیں افہام و تفہیم سے حل کرایا جائے۔ اس سلسلہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم ایک لائے عمل پیش کریں گے جو کہ ہم بزرگان دین اور علماء مشائخ کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہم ایک پاور شو بھی کریں گے، ایک بہت بڑی تعداد کو ساتھ لے کے جائیں گے جو انشاءاللہ ذریعے ہم یہ میسج پوری دنیا کو بھی دیں گے اور پوری اہل سنت کو بھی دیں گے اور ان دونوں قائدین کو بھی دیں گے کہ جو آپس میں جو کارکنان ہیں ان میں بڑی تشویش ہے اور ان کا دل بہت ٹوٹ چکا ہے کہ یہ دونوں قائدین جو ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جن کو ایک سٹیج پہ ہونا چاہیے تھا اور شہداء نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اس مقصد کو انشاءاللہ مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور ان دونوں قائدین کو ایک سٹیج پہ بٹھا کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلہ میں کچھ ہی دنوں تک ایک لائے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا اور تمام بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے اور جو یہ سن رہے ہیں ان تک بھی اتحاد کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اب چند عرصہ ہی رہ گیا ہے الیکشن میں، تو انشاءاللہ اگر یہ دونوں قائدین ایک سٹیج پہ موجود ہوں گے اور اہل سنت متحد ہوگی تو انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ تمام اہل سنت کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور ہمارے اگلے لائے عمل کا اعلان کا انتظار کیا جائے اور جب یہ لائے عمل کا اعلان ہوگا تو انشاءاللہ اپنے ساتھ تعداد لے کے انشاءاللہ جہاں جس جگہ جانے کا اور جس علماء مشائخ کے یا بزرگان دین کے مزار پہ جانے کا اعلان کیا جائے گا وہ سب احباب وہاں پہ پہنچے۔ اور ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے اگر یہ دنیا دار لوگ آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں تو یہ دین کا درد رکھنے والے آپس میں اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ چیزیں جب ہم سے پوچھی جاتی ہیں تو یقین کرے دل پہ چھڑیاں ہی چلتی ہیں کہ اتنے بڑے دو عالم دین جو ہمیں فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور دورہ حدیث کی کلاسیں لیتے ہیں اور ہمیں یہ بھی لیکچر دیتے ہیں کہ اپنی ماں سے ناراض نہیں ہونا اور اگر ناراض ہو جاؤ تو ان کے پاؤں چوم کے ان کو منا لو، تو پھر یہ دونوں قائدین آپس میں جو ہے وہ اس طرح ناراض ہیں کیونکہ ہم اختلافات کی باتوں میں نہیں پڑتے، نہ ہمیں اندرونی باتوں سے کوئی لینا دینا ہے، ہمارا کام اتحاد کی حد تک ہے، ہم نے ان دونوں قائدین کو ایک سٹیج پہ جمع کرنا ہے۔ تو ان سے دست بستہ پہلے بھی گزارش کی گئی ہے اب بھی گزارش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہم کریں گے وہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور انشاءاللہ جو اب ہم کریں گے وہ پاور ہوگی اور ہم ان دونوں قائدین کو بتائیں گے کہ کارکنان کی پاور کیا ہوتی ہے اور کارکنان کے بغیر کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم انہیں بار بار کروائیں گے اور انشاءاللہ چند دنوں تک یہ ایک لائے عمل پراپر طریقے سے آپ کو دے دیا جائے گا اور جو بھی لائے عمل ہوگا وہ متفقہ سب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوگا اور آج کا مشاورتی اجلاس بھی اس سلسلے کی کڑی تھی کہ ہم سب لوگ بیٹھ کے اگلے کا لائے عمل جو ہے وہ آگے دیں۔ بلال بھائی میرا ہی سلسلے میں ایک سوال ہے، یہ جو کچھ اعتراض کرنے والے یہ بات کرتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جی اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ساتھ کتنے لوگ ہیں پھر آپ کے ساتھ؟ یہ جتنے بھی لوگ آئے یہ اپنے ضلع کی نمائندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے ہی سینکڑوں لوگ ہیں۔ جب ہم نے انہیں کال دی اور انشاءاللہ جب ہم انہیں لائے عمل دیں گے تو یہ ایک ایک بندہ اپنے پیچھے کئی لوگ لے کر آئے گا۔ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک کا 90% حصہ اہل سنت پہ متحد ہے اور اس وقت ساری اہل سنت جو ہے دونوں قائدین کی طرف دیکھ رہی ہے، لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ لٹا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ غازی صاحب کا جو مشن ہے اس کو ہم اس طرح ادھورا نہیں چھوڑیں گے، نہ جو ہے اختلافات میں پڑھ کے غازی صاحب نے جو اتنی بڑی قربانی دی، جو پھٹے پہ چڑھ کے بھی کہہ رہا تھا صدقے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر اور لبیک یا رسول اللہ، تو اس نعرے کو ہم
दबने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जो एजेंसियों की साजिश है कि इन दोनों कायदीन को अलहदा रखा जाए और अलहदा किया जाए, क्योंकि इससे इनका मुफाद है। अगर ये कायदीन एक स्टेज पे होंगे तो इन्हें पता है अगली 2018 में हुकूमत सुन्नियों की आ जानी है इंशाअल्लाह, और सुन्नियों की जब हुकूमत आ जानी है तो इनके सारे जो ये ऑफशोर कंपनियां, करप्शन है, दास्तानें बंद हो जानी है। इसलिए इन्होंने दो शेरों को जो है वो अलहदा किया है, और जिस दिन ये दो शेर एक स्टेज पे इकट्ठे हो गए तो इंशाल्लाह हम जानते हैं कि 2018 का इलेक्शन भी हमारा है, ये पाकिस्तान भी हमारा है, इसको बनाने वाले भी हमारे हैं, ठीक है, और हम लोग ही उनके वारिस हैं। बेशक। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। इत्तेहाद बस इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद बस इत्तेहाद। जो बाहर से हैं उनके भी सुन लेना, जो बाहर आउट ऑफ सिटी से है उनका भी कुछ सुन लेना आप। चलो नमाज अपनी करवा लेते हैं, आप करवाए ना, जमात करवा लेंगे ना, जमात आप करवा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम जितने भी अरकान, जितने भी भाई, जितने भी शहरों से यहाँ जमा हुए हैं, हमारा सफ़र करके आने का मकसद सिर्फ यही है, कोई ज़ाती मफाद नहीं, सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेहाद है। अभी जैसे बिलाल भाई ने जो बातें की वो 100% इनकी ठीक है। जो पावर शो करने की बात है, जितने अरकान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ये अपने अपने ज़िले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब मीटिंग होगी, जो लाए अमल तैयार होगा, जो हम बाबा जी के पास जाएंगे, जैसे भी हमारी मुशावरत कमेटी जो फैसला करेगी, तो तमाम भाइयों के पीछे पूरा एक काफिला होगा, और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हम गैदरिंग के साथ ये इत्तेहाद करके ही सांस लेंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा एक स्टेज पे इकट्ठे तो हों, हम इंशाअल्लाह धूम मचा मैं देंगे। गुजरांवाला से तशरीफ लाया हूँ। साजिद भाई ठीक है, आ जाए ना फिर भी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप आगे हैं, आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ शहर रंगपुर से यहाँ पे पहले भी हाजिर होता रहा हूँ, आज भी उसी तरह कुछ लेट हो गया हूँ। तो ये जो आपने दाता ज़ूर के कदमों में हमें बुलाया एक नेक मिशन के लिए, इंशाअल्लाह दाता ज़ूर की वो मिज़ार है जहाँ पे तो लोग आके अगर खाना मांगे तो उन्हें मिल जाता है। तो आप तो एक बड़े मिशन के लिए आए हैं, तो इंशाअल्लाह दाता ज़ूर के कदमों में बैठ के जो तुमने या हम सब ने बैठ के ये मिशन तय किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए। बुलावे तो अब हम इत्तेहाद के सिलसिले में शिवपुरा से तशरीफ हाजिर हुए हैं दाता साहब की नगरी में। हम चाहते हैं कि जिस तरह मुमताज़ कादरी साहब की रहाई के सिलसिले में तमाम कायदीन इकट्ठे थे, हम इसी तरह चाहते हैं अभी इकट्ठे हो जाएं 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से इन बातिल कुव्वतों का रद्द किया जाए और हजूर पास का दीन जो है वो तख्त पर लाया जाए, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम जानी माली हर तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये जला सिर्फ ज़िली लेवल पे नुमाइंदगान का हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा हम पावर शो भी करेंगे और बावर कराएंगे कि हम इंशाल्लाह हर लिहाज से हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। उसी कुछ पेश करो हम दबाई फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का होगा, और इत्तेहाद के बगैर दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो रिजवी साहब का ग्रुप हो या जलाली साहब का ग्रुप हो, दोनों तरफ से नुकसान है, और इत्तेहाद में ही फ़ायदा है। और इलेक्शन का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है, दो से ढाई माह हमारे पास सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि हम अपनी गैदरिंग कर सकें और जो है वो ज़िले तरह पर अपनी जो है इंतज़ामी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर सकें, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन का माह शुरू हो जाएगा और कैंपेन का जो है वक्त शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले हमें इत्तेहाद करके अपनी तंजीमी मूड जो है वो उसको मुकम्मल करने हैं। तो इसके लिए तमाम कारकुनान और इसके बाद सुनने वाले तमाम हजरात जो हैं वो भी इसके लिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये जो है वो मामला जो हैं वो हल हों और हमारे कायदीन जो हैं वो एक स्टेज पर जमा हो जाए। जो लोग इत्तेहाद को बुरा कहते हैं कि इत्तेहाद बस बाबा जी हैं हमारे पास, बस ठीक है, तो उनके बारे में क्या कह रही हैं? जलाली साहब के जो बंदे हैं वो कहते हैं, यही तो बात मैं कर रहा था कि गलत फहमी में है सब के एक शख्सियत के बल पे हम जो है वो कुव्वत में आ जाएंगे। शायद 1-2 सीट हम ले लें या हो सकता है कोई 2-4 ले लें, लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो कुव्वत हासिल नहीं कर सकते जो हमें मतलूब है। जो मतलूब कुव्वत है वो इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन है। लोग तमाशा देखते हैं ना, लोग तमाशा देखते हैं कि मौलवी आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे। इधर आ जाए ना आप आगे।
मोहम्मद मुनीब अतारी शेखपुरा से आया हूँ मैं। इत्तेहाद के लिए उस्मान भाई ने हमें दावत दी थी। तो जो लोग तमाशा देखते हैं ना, हम मौलवी या खुद नहीं इकट्ठे होते, ये मुल्क क्या चलाएंगे? तो उनको हम बताना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद हमारा होगा, ज़रूर होगा, और हम मुल्क चला के दिखाई देंगे। ये चोर बदमाश जो मुल्क लूट के खा रहे हैं, ये तो हम इंशाअल्लाह इनको दिखाएंगे कि अहले सुन्नत की कितनी ताकत है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जो ऐसा बग गया हो, जो ऐसा बग गया हो। कायदीन के खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जा रही है कि कोई जलाली साहब की तरफ से बात कर रहा है, कोई खादम साहब की तरफ से ये बात किसी के मुखलिसीन हमारे देखें जी, हमारा सबसे पहला एजेंडा ही आज ये है इत्तेहाद का। तो इसका मकसद ये नहीं है कि कायदीन के खिलाफ कोई बात, ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कायदीन के खिलाफ कोई चीज़ सोशल मीडिया पे हो, वो किसी जगह पे भी हो, कोई भी हो, चाहे जलाली साहब हो, पीर अफजल कादरी साहब हो, कोई भी हो, नहीं धरने कि कोई भी कहते जलाली साहब ये कर रहे हैं और रिजवी साहब। हमारा एजेंडा एक और सिर्फ इत्तेहाद है, और हमने उसके लिए करना है और उसके लिए दुआ गो भी है। और इंशाल्लाह हमने इन बातन कुव्वतों को बताना है कि इत्तेहाद करवा के हमने दम लेना है इंशाल्लाह। ये खत्म नबूवत का मामला जो आया, उस पर भी हम एक पेज पे थे और सारे ये थे। और हमारी दस्त बस्ता गुजारिश है उलमा मशाइख और हमारे गद्दी नशीनों के लिए भी कि खुदारा यही टाइम है, यही एक वक्त है कि अगर आपने ये झंडा उठाया है तो इसके लिए आपके पीछे हम लगे हैं। तो बराए मेहरबानी इसको पाया तकमील तक लेके जाएं, और इसके लिए इत्तेहाद की हम जो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से उस्मान साहब और बिलाल साहब और बाकी सब दोस्त मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। जो टाइम हमारा डिसाइड होता है, जो भी डिसाइड किया है उस पे हमने भरपूर शिरकत की है। लोगों को ये भी बता देंगे, वोट न बाबा जी के लिए है, न जलाली साहब के लिए है। हाँ जी, हुजूर के दीन को तख्त पे लाने, ये अगर आप वजाहत कर दें। के लिए है, और दीन आया और हकीकत में दीन आना है तो हमारे इन उलमा और मशाइख के इकट्ठे होने से आना है। बिल्कुल वैसे ये क्योंकि हम इनके पीछे लगे हैं, हम तो उस लेवल पे नहीं है, ना वो सोचते हैं, ना हमारा इल्म है, तो हमने इनके पीछे लगे। तो हमारा इनसे गुजारिश है कि ये बराए मेहरबानी इत्तेहाद करके हमारी कोशिशें इंशाल्लाह रंग लेके आएंगी। सारे दोस्तों की हर जिला से आए हैं और दोस्त पावर शो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये दूर नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर ये इत्तेहाद कमेटी जो है हमारी एक्टिवली काम करेगी, और इत्तेहाद के लिए हमने जो लाया अमल बनाना है उस पर अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और कोई भाई कुछ कहना चाहता हो, कोई किसी जिले से है? हुजूर आप तो बताएं ना, आप आगे हैं ना, वो आप वुजू करने के अब वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने कायदीन से हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं कि खुदा रा इत्तेहाद कर दें। इसके अलावा हमारी किसी और कोई ना ही कोई हमारी ख्वाहिश है और ना ही हमारा कोई बड़ा मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाना है जी, और उसके लिए हम छोटे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं होगा तो ये हमारा मेरे ख्याल मकसद जो है ना, ये कामयाब हमें इससे नहीं होगा। अपना जरा थोड़ा तारुफ भी करा देना, कहाँ से आप आए हैं? खून की हैसियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुरीद हुसैन सरगोदा से आया हूँ जी। बाकी आपके सामने ही है जो सारे मामलात हैं, जो सारे दोस्तों की ख्वाहिश है वही हमारी भी है कि इत्तेहाद के हवाले से वो चाहे हम तो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब का और बाबा जी का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, पूरी अहले सुन्नत का इत्तेहाद होना चाहिए। जो उसमें मुखलस है, अल्लाह पाक उन सब को हिदायत दे, वो हमारा हाथ थामे और हमें किसी मंजिल पे लेकर जाए। हाँ जी, सबसे बड़ा मकसद तो डॉक्टर साहब का और बाबा जी का है। उसके अलावा जो बाकी अहले सुन्नत है, हम ये नहीं चाहते कि उनका इत्तेहाद ना हो, हम तो चाहते हैं कि उनका भी इत्तेहाद हो। बहुत शुक्रिया। आप सबसे कोई किसी भी तो ये वीडियो न्यूज़ लगाओ ना, नहीं इधर सीधे चल रही है एक सिर्फ एक दूसरी साइड। अच्छा, एक हवाले से जो गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ये जो दोस्त अहबाब जो हैं, जो कायदीन के खिलाफ जो है मुख्तलिफ पेजों के ऊपर
जो जैसे रिजवी मीडिया हो गया या जलाली मीडिया हो गया या पीर साहब का पेज हो गया, इन पेजों के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ जो पोस्ट हैं, तो खुदारा दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस तरह की पोस्टें ना करें, इससे इंतशार फैलेगा, अहले सुन्नत का दिल दुखता है, क्योंकि ये एक दो लोगों की ऐसी सोच होती है, लेकिन ये एक दो लोग जो है करोड़ों लोगों का दिल दुखाते हैं। तो इनसे गुजारिश है कि यार तोड़ने वाले ना बनो, जोड़ने वाले बनो। हम लोग जोड़ने के लिए बैठते हैं, तुम लोग एक पेज पे पोस्ट लगा के लाखों लोगों के सामने ये बार बार कराते हो कि अहले सुन्नत जो है इंतशार फैला रहे हैं और ये दोनों कायदीन आपस में कोई इनका इख्तलाफात है। इनका कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो आप कहें, ये तंजीमी मामलात हैं, ये जब बैठेंगे इंशाल्लाह जो है इसको हल कर लेंगे। तो शख्सियत परस्ती से निकलें आप, और पेजों के ऊपर जो खिलाफ पोस्टें करते हैं, दस्तबस्ता गुजारिश है कि ऐसी पोस्टें ना करें, और कायदीन से भी गुजारिश है कि जो उनके साथ जो लोग होते हैं, जो ये पेज के एडमिन होते हैं, तो उनको मना करें कि एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की पोस्टें ना करें, क्योंकि बाद में जब इत्तेहाद होगा तो ये चीज़ें जो है वो मामलात बाद में इंतशार फैलाएंगी। तो इसलिए गुजारिश है, चूँकि इन पेजों पे लाखों लोग जो है लाइक होते हैं, तो इससे गुजारिश है कि तोड़ने वाले ना बने, जोड़ने वाले बने। तो इस तरह की इख्तलाफी पोस्टों से गुजारिश है ना लोग ऐसी शेयर करें, ना ऐसी चीज़ों को लाइक किया जाए, और ऐसी दस्तबस्ता गुजारिश है एडमिन जो है उनको कि ये रिजवी मीडिया और जलाली मीडिया के जो एडमिन है उनसे गुजारिश है कि इस तरह की पोस्टें बना के ना आगे फैलाई जाए। जो ये कारकुनान फेसबुक पे भी ना कौन से जो बंदा इस तरह की पोस्ट शेयर करता है उसे पूरी ब्लॉक करें। आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाओ आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मैं सिर्फ एक गुजारिश ये करने आया हूँ कि अगर हमारे बुज़ुर्गों को कहीं ये किसी किस्म की गलत फहमी है कि हम अलहदा करके कोई भी हम ताकत अवेल कर सकते हैं, तो खुदारा इसको समझ जाएं कि ये सिर्फ एक गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप गौर करेंगे कि जलाली साहब की कॉल के ऊपर जो लोग जमा होते हैं उनकी शक्लें आप गौर से देख लेंगे, वही लोग रिजवी साहब की आवाज़ पे जमा होते हैं। ठीक है, अलहदा इन दोनों के ग्रुप में कोई भी इतनी बड़ी तादाद नहीं है। ये इकट्ठे होंगे तो ही कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ अवेल करने के काबिल होंगे। अगर ये अलहदा करके सिर्फ फ़कत ये जलसों की तादाद देख के ये अगर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम अलहदा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस चीज़ को निकलें इस गलत फहमी से। ये बेशक मैं इसको गलत फहमी ही कहूँगा, जब तक ये इकट्ठे होंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हमें, और जो लोग इत्तेहाद के ये लोग ये इकट्ठे हुए हैं, हम लोग फ़कत यहाँ वक्त पास करने के लिए नहीं आए। उलमा एक स्टेज पे के ऊपर इकट्ठे हुए, हमें एक आवाज़ तो दें, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों से ज़्यादा मुखलसीन हैं जो लोग इत्तेहाद के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों उलमा सरों के ताज हैं। तो मेरी हाथ बांध के इन बुजुर्गों से गुजारिश है कि खुदारा इस गलत फहमी से निकलें कि हमारे पास जो तादाद है वो काफ़ी है। बेशक वो ना काफ़ी है, सुन्नी हर वो शख्स, हमें उस बंदे की ज़रूरत है जो सही उल अक़ीदा सुन्नी है, ना सिर्फ हमारे अकीदे के लिए बेहतर है, ना सिर्फ मसले के अहले सुन्नत के हक़ में बेहतर है, ये मुल्क पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, और अवामी अहले सुन्नत के हक़ में बेहतर है। और हमारे पास सिर्फ ये 2018 तक का ही वक्त है, और इसमें भी बड़ा कम वक्त रह गया है कैंपेन चलाने में। तो हमें फिर से मैं गुजारिश करता हूँ बुज़ुर्गों से, मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्टली इन बुज़ुर्गों के साथ है कि खुदारा इस गलत फहमी से निकल आएँ कि हमारे पास जो तादाद है वो तादाद हमें काफ़ी है, ना काफ़ी है, ना काफ़ी है, ना काफ़ी है।